उनके उपस्थिति को Hallelujah. लेकर चलने वाले In the लोग place हैं। where you're sitting, God's presence is there. और जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ पर प्रभु की The place उपस्थिति where है। you're standing, God's presence is जहाँ पर there. आप खड़े हैं वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति Because है। you carry the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर के उपस्थिति को ले जाने वाले लोग हैं। Hallelujah. And this year is a year of increasing glory. और ये साल जो है बढ़ती हुई महिमा का साल Indeed, है। God has been faithful. God has been good to और us. परमेश्वर विश्वास योग्य और भले रहे हैं। And we have seen that God has increased His glory in our lives. और परमेश्वर ने हमारे जीवनों में उनकी महिमा बढ़ाते हुए हमने देखा The है। manifestation of Jesus, which was there on the first day of this year, और पहले दिन जैसे यीशु मसीह का दर्शाना या कार्यरत था, and the manifestation of Jesus on this day, और आज जब हम देखते हैं there has been a growth in that. और वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर बढ़त हुई है। Hallelujah. The glory has और increased. परमेश्वर की महिमा जो है बढ़ गई है। And that is our testimony. और ये हमारी गवाही है। And this month we are hearing from the word that He is our promised hope. और इस महीने हम सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारा वादा किया हुआ आशा है। Hallelujah. We have been extensively speaking about the birth of Jesus और Christ. हम जो है परमेश्वर के माफ कीजिएगा यीशु के जन्म के बारे में हम सीखते आए You know, हैं। God gave His only begotten Son. और हमने देखा कि कैसे इस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। Hallelujah. When God gave His only begotten Son, और जब परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दे दिया, there was a purpose behind it. और वहाँ पर एक उद्देश्य था। The purpose was to save you and me. और वहाँ पर उद्देश्य था आपको मुझे बचाने The के purpose लिए। was to change our destination. और वहाँ पर हमारा लक्ष्य हमारा देह The बदलने purpose के was लिए। to change our way. और हमारा जो रास्ता है उसे बदलने के लिए। And indeed, when we call out the name of और Jesus, जब हम जो है यीशु का नाम को we पुकारते call हैं Him as Prince of Peace. और हम उन्हें जो है हमारे शांति का We राजदूत call कहते Him as a हैं। wonderful counselor. और हम उसे जो है अद्भुत सलाहकार We कहते call हैं। Him as Savior, as Redeemer, as a bread of life. और हम उन्हें जो है हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा जीवन का रोटी कर कर हम बोलते Hallelujah. हैं। He is the Alpha and the Omega. और वो अल्फा और ओमेगा है। He is the Almighty One. और वो सर्वशक्तिमान है। And He is Emmanuel. और वो इमानुएल है। Hallelujah. He never leaves us, never forsakes और us. वो कभी हमें छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं No हैं। matter what situation we are going through, और चाहे कोई भी परिस्थिति से हम होकर God गुजरे। is with us. Amen। परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. God is with us. और परमेश्वर हमारे साथ है। You know, because His word says that He will never leave you, never forsake you. क्योंकि वचन कहता है वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। He is our mediator. He is our advocate. और वो हमारा जो है मध्यस्थी में हमारे लिए खड़े होकर जो है खड़े रहकर प्रार्थना He करने is वाला the है। chief cornerstone. और वो जो है वो जो नींव का पत्थर है। He is our author and the finisher of our faith. और वो हमारा विश्वास का कर्ता और धर्ता है। Hallelujah. The list will go on and on and on and on and on. और ये जो सूची है वो आगे बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। You know, the description of Jesus, और यीशु मसीह का चित्रण will be a revelation to us. और हमारे लिए एक प्रकाशन या प्रकाशित की तरह You as होता we है। experience Him in a new way, in a new form, every day of our life. और जैसे प्रतिदिन हमारे जीवन में जैसे हम उनका अनुभव करते हैं, उनके साथ एक संबंध के साथ संगति को बढ़ाते The way we हैं। experienced Jesus yesterday will be different from the way we experience Jesus today. और कल जैसे हमने उनका अनुभव किया था वो आज से अलग होगा। Because of Jesus, He says that you and me would be living in newness. और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नएपन में जीते हैं। Hallelujah. His mercies are new every morning. और उनकी करुणा जो है नई है हर दिन। But this morning I wanted to refer to a description और आपको इस सवेरे के वक्त कुछ बातों को कहना चाहता which हूँ। people hardly uses. और When they talk about Jesus Christ, यीशु मसीह के बारे में जब बोलते हैं and all the description which I have said before, और जो भी मैंने उल्लेख उनके बारे में किया है, it comes in our mouth automatically. और हमारे मुख में जो है निरंतर जो है आता रहता है। But this morning we want to look at something else. लेकिन आज जो है कुछ अलग बातों को हम And today is देखेंगे। the last Sunday of this month and this year. और इस महीने का और इस साल का आखिर का इतवार है। And let's open our Bible to James chapter 1 verse 23 and 24. और हम याकूब का किताब पहला अध्याय 23 और 24 देखेंगे।
James chapter 1 verse 23 and 24. और याकूब का किताब पहला अध्याय 23 और 24. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है. Hallelujah. Verse 24 as well. इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा है. Yes, Jesus is the Holy One of Israel. और देखिए यीशु जो है वो इज़राइल का पवित्र He is a परमेश्वर है. master, he is a friend, he is an advocate, he is a teacher. और वो जो है हमारा मालिक है, हमारा जो है मध्यस्थी में खड़े रहने वाला है, वो सब कुछ है. But he is also a mirror लेकिन वो जो है हमारा दर्पण भी in है. which we need to reflect and see. और उसमें हमें देखना है और अपने आप को जांचना You know, है. James says that the word of God is like a mirror. और देखिए वचन कहता है कि वचन जो है वो दर्पण के समान है. And we all know the word of God is no other than Jesus और Christ. हम जानते हैं सभी लोग कि वचन और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है. You know, John chapter 1 verse 14 says, और यूहन्ना का किताब पहला 14 कहता है the word became flesh कि वचन जो है देहधारी हुआ and made his dwelling among us. और वो जो है हमारे बीच में डेरा को डाला. Hallelujah. Jesus dwelled among us. और यीशु जो है हमारे The बीच word में of God वो है. dwelled among us. और यीशु मसीह जो है हमारे बीच में And the निवास way करते Jesus हैं. lived on this earth, और जिस तरह से यीशु यहाँ पर रहे he became a perfect example for us और वही जो है एक सिद्ध जो है उदाहरण की भांति to बन reflect गए. and live accordingly. और जिनको हम देखकर उनके अनुसार हम चल सकते हैं. You know, Peter says that Christ became an example for us. और देखिए पतरस कहता है कि कैसे यीशु क्रिस्त जो है हमारे लिए एक That उदाहरण we should बने follow his steps. कि हम उनके जो है पदचिन्हों पर चले. You know, this morning as we are about to partake into the Lord's Supper, और इस सवेरे के वक्त जैसे हम जो है प्रभु मेज में स्वाभाविक होने वाले it's हैं. very important for us to reflect और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को देखें and examine, are we walking in the footsteps of Jesus और Christ? ये देखते हुए कि क्या हम सच में जो है यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चल रहे हैं. You know, word of God says that James writes that the word of God is the mirror. और देखिए जैसे हमने पढ़ा कि वचन कहता है कि वचन जो है वो दर्पण के भांति है. Hallelujah. Jesus Christ is a mirror for us. और यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक दर्पण के भांति है. You know, he has set a standard. और उन्होंने एक स्तर को रखा है. And we as his followers, we as Christians, we need to achieve that standard in our life. और देखिए हम उनके शागिद होने के नाते हम उनके पीछे हो लेने के नाते हमें उस स्तर को जो है नापना है. You know, Paul writes that I have not yet achieved it, but I am still, marching towards that perfection. और देखिए पौलुस कहता है कि मैं अब तक जो है पूरा मेरा जो है समाप्त नहीं हुआ, अब भी जो है वो सिद्धता की ओर यीशु की Why ओर he मैं can बढ़ता say हूँ. that words? और क्यों ऐसे वो बोलता है? Because every day of his life, he looks at the mirror called Jesus Christ. और क्यों ऐसे कहता है? क्योंकि प्रतिदिन जो है यीशु जो उसका दर्पण है उसे वो देखता And है. when he looks at the mirror called Jesus और Christ, जब वो यीशु नामक दर्पण को देखता he है understands that he has not yet achieved it. और वो कहता है या अपने आप में समझता है कि अब तक उसने पूरा प्राप्त He नहीं understands किया. that he needs to go further to achieve that perfection of Christ. और वो ये जानता है कि अब भी मुझे आगे बढ़ना है और बेहतर होना है क्योंकि यीशु के समान मैं अब तक नहीं बना This हूँ. morning the question which comes to us is, are we standing before that mirror Jesus और Christ? आज ये प्रश्न है हमारे लिए कि क्या हम वो यीशु नामक दर्पण के सामने खड़े हैं? Are we reflecting our lives and are we watching our lives? Are we, we are matching with the standards of Jesus क्या Christ? हम जो है हमारे जीवनों को जीवन शैली जो है क्या परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप हो रहा है या उसके समान है? If we are standing in the front of that mirror, और देखिए अगर आप जो है उस दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं we will come to know where do we stand और हम जो है अच्छे से मालूमात करेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं and how we need to be perfect in our lives. और यहाँ पर हम कहाँ पर हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है. This morning I want to talk about two things which happens when we stand in the front of the mirror. और इस सवेरे के वक्त दो बातों को आपके सामने लाना चाहता
हूँ कि जब हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं You know, we own a mirror, और जब हम जो है एक दर्पण के सामने खड़े you know, होते to हैं, see ourselves, जब हम अपने आप को देखते हैं, you know, to make ourselves look clean and neat. माफ कीजिएगा, जब हम जो है दर्पण को खरीदते हैं और जब हम देखते हैं, हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जो है अपने आप को साफ सुथरा या जैसे है वैसे हम देख ले। You know, a mirror reveals how others see us. और देखिए ये दर्पण जो है हमें उस तरह से दिखाता है जिस तरह से दूसरे लोग हमें देखते You know, हैं, not how we want to see ourselves. और वो हमें ये नहीं बताता कि हम जैसे हमको देखना है वैसे हमें नहीं दिखाता। You know, there is a fairy tale. और देखिए ऐसा एक कहावत है, And the princess stands in the front of the mirror and asks the mirror, और वो जो है जो 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 राजकुमारी है वो दर्पण के सामने खड़ी "Mirror, होती है mirror, और how do I look?" और वो कहती है कि दर्पण दर्पण मुझे बता मैं कैसे दिखती And the हूँ, mirror says that you look beautiful. और वो दर्पण कहता है तू बहुत सुंदर You है look pretty. और तू बहुत ही सुंदर है। You know, that's not the mirror which we are facing. और हम जो है ऐसे दर्पण का सामना नहीं करते या A उसको mirror नहीं which we are देखते। facing is a mirror called Jesus Christ, who gives clarity in our और lives. देखिए जो दर्पण को हम देखते हैं वो दर्पण हमें जो है स्पष्टीकरण को बताता है। You know, when we stand in the front of the mirror, अगर हम जो है उस दर्पण के सामने खड़े होते हैं you know, we see ourselves as God sees us. और हम जो है उस समान अपने आप को देख पड़ते हैं जैसे परमेश्वर हमें देखता है। And the first thing is that when we stand in the mirror will bring clarity in our और lives. देखिए जब हम उस दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो वहां पर स्पष्टीकरण होगा। And the word of God is one of the best way that God reveals our sins. और देखिए पहली बात जो है हमें परमेश्वर जो है हमारे पापों का उजागर When we करेंगे। read the word of God, और जब हम वचन को पढ़ते हैं when we keep the word of God as a mirror, और जब हम ये वचन को जो है हमारे सामने एक दर्पण के भांति you know, रखते it हैं exposes what is there in our heart. और वो हमें बताता है कि हमारे हृदय में क्या है। It may be some sin. और हो सकता है वो कुछ पाप It हो, may be some हो shortcomings. सकता है हमारी कमियां हो, The areas of life where we need to repent. और ऐसे जो है हमारे क्षेत्र जीवन के जहाँ पे हमें पश्चाताप करना जरूरी है। You know, that's what the word of God will reflect to और us. देखिए यही बातों को परमेश्वर हमें दिखाएगा। But most of us don't want, you know, to go in the front of the mirror. लेकिन हम में से अधिकतर जो है उस वचन भांति दर्पण की ओर नहीं जाना They चाहते। don't want to confront the hypocrisy into which they are walking. और देखिए वे जो ढकोसलापन या फिर जो है कपटीपन जिसमें जी रहे हैं उन बातों को वो नहीं चाहते You कि know, वो many सामना want to करें। live in their own false mindset. और बहुत सारे अधिक लोग जो है अपने झूठे व्यक्तित्व में रहना That चाहते they हैं are living a godly life and following the footsteps of Jesus Christ. और उनको ऐसे लगता है कि वो जो है परमेश्वर के पद चिन्हों पर चल रहे You know, हैं। but this morning the word of God is coming to us. लेकिन इस सवेरे के वक्त परमेश्वर का वचन आ रहा God है। wants us to face that mirror, Jesus Christ. परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है यीशु मसीह नामक दर्पण पर God अपने wants आप us को to देखें। keep the word of God as a mirror and see where we need to change. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है उस दर्पण को यीशु को हमारी ओर देखें और हम कहां पर बदलाव को लाए उस बात को देखना To चाहते see हैं where is the issue in our और lives. कहां पर जो है वो संघर्ष या कोई बात हमारे जीवन में है। You know, when James writes this verse, और देखिए जब ये याकूब जो है इस वचन को लिखता है you know, he mentions that there are some people और वो कहता है कुछ लोग ऐसे हैं who merely glance themselves at the mirror. और वे जो है बस देखने के लिए अपने आप को देखते हैं दर्पण You know, में they do not study carefully. और वे जो है सावधानी से पढ़न नहीं करते। In that same way, many of us, you know, just read the word of God, they do not study it. और बहुत बार हम भी जो है वचन को पढ़ते तो है लेकिन मनन नहीं करते Just glance through it. और बस ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ जाते You know, हैं। when you want to get ready, और देखिए जब आपको तैयार होना रहता है, you know, when you stand in the mirror, in the front of the mirror, जब आप दर्पण के सामने खड़े हो you जाते know, will you हैं, just glance and just walk away? क्या आप बस ऐसे देखते हुए ऐसे निकल जाओगे? No, right? You will stay there. You will see how you are looking. आप जो है वहां पर खड़े रहोगे, आप देखोगे आप कैसे दिखते You हो will spend some time addressing your appearance. और आप जो है कुछ पल वहां पर बिताओगे, कैसे आप दिखते हो वो You देखने will के see लिए। whether you are looking good or is there any flaws.
और आप देखोगे कि आप अच्छे दिख रहे हो या फिर कुछ कमियां बची You want to हैं। get some clarity about your experience, about your appearance, how you're looking. और आप चाहते हैं कि आपके जो दिखना या आप जिस तरह से दिखते हो उसमें स्पष्टता हो। A casual reading of the Word of God और देखिए ऐसे ही वचन पढ़ना will never reveal our flaws, will never reveal, what our issues is. और हमारा सही मायने में कहाँ पर हमारी कमियां हैं या गलतियां हैं वो वहां पर हमें नहीं We दिखाई need to पड़ेगी। spend time in the presence of God, reading the Word of God. We need to spend time facing that mirror called the Word of God. और देखिए जरूरी है कि हम जो है इस वचन नामक दर्पण में समय को लगाए, हम जो है उसमें मनन करें। And when we face the mirror, और जब हम उस दर्पण में अपने आप को God will देखेंगे, give us the clarity where we are standing and whether we are walking in the footsteps of Jesus और Christ. परमेश्वर जो है हमें स्पष्टता देंगे कि क्या हम सच में यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। James also writes, और याकूब ये भी लिखता है, there's some people और कुछ लोग ऐसे भी who हैं stand in the front of the mirror, और वे जो है दर्पण के सामने खड़े हो जाते and हैं, as they leave, और जैसे वो निकलते हैं they forget what changes needs to be done. और वे भूल जाते हैं कि क्या बदलाव को लाना था। Many Christians have become like this. और आज जो है काफी क्रिस्ती They ऐसे spend बने time हैं in the presence of God. और वे समय तो बिताते हैं प्रभु के, And when God reveals, और जब परमेश्वर उनको बताते हैं reveals the area where they need some changes, where the requirements are there, और जब परमेश्वर उनको बताते हैं कि ये बातों में आपको बदलाव को लाना the है, areas where they need to improve, the areas where correction is needed, और ऐसे जगह पर जहाँ पर आपको बदलना है, आपको यहाँ पर बदलाव को करना है, they get busy in their day-to-day lives and forget the correction and improvements of God. और वे भूल जाते हैं अपने प्रतिदिन की रोजमर्रा की जिंदगी में, और जो प्रभु चाहते हैं उस करेक्शंस को भूल जाते हैं करने This के लिए। morning, if you're sitting here, if you're hearing to me, और इस सवेरे के वक्त अगर आप बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, are we a kind of people who are just glancing through the Word of God? क्या हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, Or are we such a people whom God says that this is the area where you need to correct, but when we move out, we just forget it? या फिर हम इस प्रकार के लोग हैं कि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि ये जगह पर आपको बदलाव को लाना है, लेकिन हम जो है अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। If we are like these people, अगर हम ऐसे लोग हैं, we need to change हमें ourselves. अपने आप को बदलना We है। need to stand in that front of mirror intently seeking the face of God. हमें जरूरी है कि हम जो है उस वचन नामक दर्पण की ओर अपने आप को देखते हुए हम अपने आप में बदलाव को If we लाएं। want clarity from God, अगर हम चाहते हैं स्पष्टीकरण प्रभु से, it is important for us to gaze in the front of the mirror the Word of God. और जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन नामक यीशु मसीह के दर्पण में अपने आप को देखते हुए समय को बिताएं। When we are facing the mirror of God, और देखिए जब हम जो है उस परमेश्वर के दर्पण में देखते हैं, we must examine our hearts, our lives, how we are walking. हमें देखना है कि किस तरह से हम जीते हैं, हमारी जीवन शैली हम किस तरह से चलते फिरते हैं। Gazing requires time. और देखिए जब हमें देखना है तो वहां पर समय लगता है। When you go out to for the sky gazing, और देखिए जब आप जो है गेजिंग के लिए या फिर आप जब है आकाश में तारंगन देखने जाते you have हैं, to spend time over there. और आपको वहां पर जरूरी है कि आप समय को बिताएं, You have to be attentive. और आपको जो है वहां पर ध्यान पूर्वक ध्यान Similarly, देना when है। you are gazing in the front of the mirror called the Word of God, और जैसे आपको जो है एक टक होकर जो है देखना है वचन नामक जो है दर्पण में, it requires sincere devotion. और वहां पर जो है आपका It भक्ति, requires attention. It requires time. आपका भक्ति, आपका ध्यान पूर्वक होना जरूरी है, और उसको समय लगता है। Spending 5 minutes a day और 5 मिनट आप बिताते हो will not achieve the purpose. और वहां पर वो उद्देश्य पूरा Will not नहीं give you होगा, the clarity. और वहां पर आपको स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। You and me need to spend time in the presence of God
watching at the mirror, the Word of God. और जरूरी है कि हम वचन नामक उस दर्पण में समय को बिताएं और वहां पर अपने आप को देखें। I know someone said, और किसी ने ऐसे कहा, gaze intently into the mirror and discover the black mark. और देखिए उसने कहा कि एक टक होकर जो है उस दर्पण में देखो और देखते हुए उस जो है उस छेद को आप देखने There पाओ। may be many black marks in our और lives, हो सकता है बहुत सारे काले डब्बे जो है हमारे ऊपर होंगे, which we are not aware of. और हो सकता है हमें उसकी जानकारी नहीं But है। when we stand in the front of the mirror, Jesus Christ, लेकिन हम जब यीशु मसीह नामक दर्पण के सामने खड़े हो and जाते when we हैं see our lives, when we compare our lives with Him, और जब हम अपने आप को उनकी ओर देखते हुए अपने जीवन को उनकी ओर देखते हैं, we will receive that clarity and see that black marks in our और हम lives. जो है उस स्पष्टीकरण को वहां पर देखेंगे और वो काले डब्बे जो हमारी जिंदगी में है उसको देखने पाएंगे। Turn to somebody and say, gaze intently in the mirror of God. और आप जो है आपके पड़ोसी से कहे कि एक टक होकर जो है आप वचन के दर्पण में And देखिएगा receive clarity from God. और आप परमेश्वर से स्पष्टीकरण को पाइएगा। Hallelujah. The first thing is that when we stand in the front of the mirror, it gives us clarity. और पहली बात जो हमने देखा कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो स्पष्टीकरण वहां पर होता है। Second thing, और दूसरी बात, our God is a God, our God is a merciful God. और देखिए हमारे परमेश्वर जो है वो दयालु प्रभु है। When we intently gaze in the Word of God, और देखिए जब हम जो है एक टक होकर जो है उस वचन नामक दर्पण में देखते God हैं, not only gives us the clarity, और परमेश्वर वहां पर सिर्फ स्पष्टता को नहीं देते, but He also gives the remedies and how we can overcome the shortcomings. लेकिन वो हमें जो है सुझाव बताते हैं कि जो हमारी कमियां हैं उस पर हम कैसे हावी हो जाए। Jesus, who is the mirror of God, और देखिए यीशु जो परमेश्वर का दर्पण है, has the ability to cleanse us and restore us. और परमेश्वर में वो क्षमता है कि वो हमें साफ करे और हमें जो है वो पुनर्स्थापित करे। When God built the tabernacle, और देखिए जब परमेश्वर ने उस टबरनाकल को, उस तंबू को बनाया, Moses took a metal like glass from the which the women used to use, और देखिए वहां पर मूसा ने जो है उस धातु को लिया जहां पर वो स्त्रियों ने इस्तेमाल किया, and made a laver out of और it. वहां पर जो है एक धातु से एक बर्तन को, बड़े बर्तन को The बनाया, laver was a huge basin और वो जो है एक बड़ा धातु से जो बड़ा that बर्तन stood था, between the brazen altar और वहां पर जो है वो वेदी के सामने खड़ा and था the holy place. और पवित्र स्थान के सामने, I mean This बीचों बीच basin खड़ा was था। filled with water. और वहां पर जो वो बर्तन था उसमें पानी भरा हुआ था, And when the priest goes inside, when the priest washed their और hands, जब वहां पर जो है महायाजक जाते हैं अपने हाथों को धोने के लिए, they have to see their face on the water. और देखिए जरूरी था कि वे अपने मुख को जो है उस पानी में अपने आप को देखे। Water for washing is a picture of the Word of God cleansing us. और देखिए ये पानी जो वहां पर बर्तन में है ये परमेश्वर का वचन जो हमें शुद्ध करता है उसको बताता है। He says that I am the living water. और वचन कहता है कि वो जीवन जल है। Hallelujah. He is the living water. He has that cleansing power. और देखिए वो जीवन का जल है और उनमें जो है हमें शुद्ध करने की John क्षमता chapter है। 15 verse 3 says, और यूहन्ना का किताब 15:3 कहता है, now you are clean through the word which I have spoken unto you. और वचन कहता है 15:3 में, अब तुम शुद्ध हो जिस वचन को मैंने तुमसे कहा है। Word of God has the power to cleanse और us. देखिए वचन में वो सामर्थ है कि वो हमें शुद्ध करे। When we stand in the front of the mirror, और जब हम उस दर्पण के सामने खड़े होते what हैं, you do, और क्या करते हैं, if you have some marks on your face, और जब आपके चेहरे पे कोई धब्बे होते you हैं, will clean it. आप जो है उसको साफ करते हो। That's what the word of God does. और यही तो परमेश्वर का The वचन word of कहता God है। cleanses us. और परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। When a sinner trusts Christ, और when a sinner trusts Christ, और देखिए जब एक पापी जो है वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, he is once and all washed. और वो जो है एक ही बारी में जो है शुद्ध होता है। A believer who is walking in this world, लेकिन एक विश्वासी जब इस दुनिया में चलता है, his hands and feet may get defiled, और हो सकता है कि उसके हाथ पैर गंदे हो and जाए, he needs cleaning. और उसको जो है जरूरी है कि You, वो you शुद्धिकरण- and me, we are walking in this world. Our hands, our feet may get defiled, but we need cleaning in our life. We need cleansing in our lives. और देखिए हम जो है इस दुनिया में चलते वक्त
हमारे हाथ पैर गंदे हो सकते हैं और उसके वजह से हमें शुद्ध होने की That जरूरत है। cleansing will only come from the word of God. और ये शुद्धिकरण जो है सिर्फ परमेश्वर के वचन But की it's ओर से important होगा। for us to stand in the front of the mirror of God and allow God to cleanse us. लेकिन ये जरूरी है कि हम परमेश्वर नामक दर्पण के सामने खड़े होते हुए होने दे कि हमें जो है वो शुद्ध करे। 2 Samuel chapter 12 illustrates the story of Nathan, having an experience with David. और देखिए दूसरा सामुएल का किताब 12वां अध्याय वहां पर उल्लेख है कि कैसे नेतन नबी जो है वो दाऊद के साथ बातचीत करता है। Nathan told David a story about a stolen ewe lamb. और देखिए वहां पर दाऊद से जो है नेतन जो नबी है वो कैसे एक भेड़ की चोरी के बारे में कहता I don't है। want to go into that story. We और don't मैं- have that much time. और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उस कहानी को But सुने। after hearing the story, David became angry. लेकिन वहां पर जब दाऊद इस कहानी को सुनता है तो वो बहुत ही क्रोधित And he होता says है। that the man who had did it must die. और वो कहता है कि जिस मनुष्य ने ऐसे किया है उसको जरूरी है कि वो मृत्यु And पाए। Nathan says in verse 7, और 7वें वाक्य में 12:7 में जो है नेतन इस प्रकार कहता है, you are that man. तू वो व्यक्ति है। Hallelujah. The word of God is coming through Nathan और to देखिए David. वचन जो है नेतन नबी के द्वारा जो है दाऊद के पास आता है। And when this word came to David, और जब ये वचन जो है दाऊद के पास आया, David was standing in the front of the mirror, the word of God. और देखिए वहां पर जो दाऊद है वो वचन नामक दर्पण के सामने खड़ा था। As he stood in the front of the mirror, और जब वो उस दर्पण के सामने खड़ा था, the good thing which happened, और वहां पर अच्छी बात ये हुई, that David confessed and he repented. और वहां पर दाऊद ने अंगीकार करते हुए पश्चाताप किया। He says, I have sinned against the Lord. और वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। And because David repented, David confessed his sin, और क्योंकि दाऊद ने पश्चाताप किया, अपने पापों का अंगीकार किया, Nathan spoke the word of restoration और in his life. और वहां पर नेतन नबी ने जो है पुनर्स्थापना की बातों को दाऊद के जीवन के लिए He says that बोला। the Lord has taken away your sin. और वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर ने तेरे पापों को ले लिया है, You are not going to और die. तू अब जो है नहीं मरने वाला है। Hallelujah. The assurance of forgiveness as cleansing is there in the word of God. और देखिए परमेश्वर के वचन में हमें जो है आश्वासन देने वाली सामर्थ है। He assured David. और उन्होंने जो है आश्वासन दिया He दाऊद is को। assuring you and me as और well आज प्रभु आपको मुझे भी आश्वासन देते that He हैं। has the power to forgive you. और उनके पास वो सामर्थ है कि वो हमें He क्षमा has the करे। power to cleanse you. और उनके पास सामर्थ है कि वो हमें शुद्ध करे। But this morning we need to approach God, approach Him as a mirror. लेकिन जरूरी है कि आज हम जो है परमेश्वर नामक उस दर्पण के सामने अपने आप को ले जाए। And turn to your neighbor and tell your neighbor, और आप आपके पड़ोसी से कहिएगा, approach Jesus with repentance और आप जो है यीशु के सामने जो है पश्चाताप रूपी आइएगा, and get cleansed by God. और आप यीशु के द्वारा जो है शुद्धिकरण को पाइएगा। God wants us to look like Him. और देखिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु के समान He दिखें, wants us to be more and more like Jesus और वे Christ. चाहते हैं कि हम जो है अधिक से अधिक यीशु के समान दिखाई पड़े। And how we will be like Jesus Christ when we stand in the front of the mirror, Jesus Christ, and when we examine ourselves. और कैसे हम यीशु के समान दिखाई पड़ेंगे जब हम जो है उस दर्पण में यीशु के देखेंगे, When we realign ourselves. जब हम जो है एकजुट उसके When we साथ are ready होंगे, to change. जब हम तैयार हैं बदलने के When we लिए, allow God to work in our lives. जब हम तैयार हैं परमेश्वर को हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए, No, that's the time when we will start changing, or we will start marching towards the perfection of Christ. और देखिए तभी जो है हम परमेश्वर के एक सही मायने से मार्गदर्शन में चलने वाले So if you are होंगे। ready to face the mirror, the word of God, अगर आप तैयार हैं उस वचन नामक दर्पण की ओर अपने आप को ले I जाने would के लिए, like you all to rise on your feet. मैं विनती करता हूँ कि आप खड़े हो जाइए। As we go into prayers this morning, और जैसे हम प्रार्थना करने वाले हैं, this is the last Sunday of this year. और देखिए इस साल का आखिरी का इतवार Let's है, reflect back. आइए अपने आप को हम देखेंगे। Let's